Hey everyone, welcome back to our channel. I hope you are healthy and well. So guys, in today's video we are going to discuss about the complete topic vectors. Let us first see the things we will discuss today are: what is vector? Definition with example. Representation of a vector. How can we denote vectors for symbols? How a single letter can be denoted for vectors. Type of vectors. Triangle law. What is resultant vector? What is same order and reverse order? Parallelogram law. Scalar product of two vectors. Vector product of two vectors. And angle between two vectors. Vectors. First of all, we will proceed to its definition. What is it? Those physical quantities which have magnitude, direction, and obeying law of vector algebra are called vectors. Let us take an examples. Displacement 5 meter towards north. Say, here 5 meter is the magnitude of displacement and north is the direction of displacement. Thus, displacement have both magnitude and direction, as well as it obeys the law of vector algebra. Hence, it is a vector. How the displacement obeys the law of vector algebra? We will know this in the upcoming videos. Some more examples of vector are velocity, force, acceleration, angular velocity, and many more. Note: if a physical quantity has magnitude and direction both, then it does not always imply that it is a vector. For it to be a vector, third condition of obeying law of vector algebra has to be satisfied. For example, the physical quantity current has both magnitude and direction, but it does not a vector as it disobeys the law of vector algebra. Representation of vectors. We can use an arrow to represent a vector. Its length is its magnitude and its direction is indicated by direction of the arrow. That is, the vector shown in the diagram can be written as, and its magnitude is written as. How can we denote vectors for symbols? To denote vectors, arrows are marked above the representative symbols for them, that is, AB vector, BC vector, and so on. Single letters also would be suitable for this purpose, like the abbreviation of velocity is small v and it is a vector quantity, hence it is denoted by arrow marked above the representative symbol. Similarly, the linear momentum, the acceleration and the force are represented by or denoted by p vector, a vector and f vector respectively. Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon. Types of vector. So first of all, we will proceed to equal vector. What is it? Two vectors, A vector and B vector, are said to be equal when they have equal magnitudes and same direction and represent same physical quantity. Then they are known as equal vectors. Negative of a vector. Vectors having same magnitude but opposite in direction are called as negative of a vector. Here, parallel vectors.
When the two vectors are in the same direction and having the same angle but having different magnitude, it is known as parallel vector. Anti-parallel vectors. Two or more vectors which have equal or unequal magnitude but having opposite direction are called anti-parallel vectors. Unit vector. A unit vector is a vector of magnitude unity, or we can say a vector whose magnitude is 1 is called as unit vector. Unit vector for a vector is a cap. Zero vector. A vector having zero magnitude and arbitrary direction not known to us is a zero vector. Collinear vector. Collinear vectors are two or more vectors which are parallel to the same line irrespective of the magnitudes and direction. Coplanar vector. Vectors which lie on the same plane are known as coplanar vectors. Two vectors will be always coplanar. Three vectors may or may not be coplanar. Co-initial vectors. Two or more vectors with same initial point are known as co-initial vectors. Co-terminal vectors. Two or more vectors with same terminal point are known as co-terminal vectors. Law of vector algebra or triangle law of vector addition. So first of all we will proceed to its definition. What is it? If two non-zero vectors are represented by the two sides of a triangle taken in same order, then the resultant is given by the closing side of the triangle in reverse order. तो हमने डेफिनेशन में क्या देखा? If two vector represents the two sides of the triangle taken in same order. What is same order? ये अभी बताता हूँ कि सेम ऑर्डर होता क्या है. अगर दो वेक्टर को हम ट्राइंगल की दो साइड मानते हैं, दो साइड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो देन द थर्ड साइड, देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल, द क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल. तो क्लोजिंग साइड ये वाली होगी, ये वाली. या तो हम वेक्टर यू बनाएं या तो वेक्टर हम यू बनाएं. कैसे बनाना है वो देखो. अगर दो साइड ट्राइंगल की रिप्रेजेंट करती है ए वेक्टर बी वेक्टर, तो थर्ड जो वेक्टर है टेकन इन क्या बोला है, देन द क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल इज रिप्रेजेंटेड एज रिजल्टेंट वेक्टर टेकन इन रिवर्स ऑर्डर. तो ये ऐसे होगा, रिवर्स होगा वो आर वेक्टर. ये आर वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमें, रिजल्टेंट वेक्टर. अब ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एडिशन ऑफ अ वेक्टर, दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं. तो जो रिजल्ट आएगा ना कुछ, तो उसको हमने नाम दे दिया आर वेक्टर, और उसको हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर. रिजल्टेंट वेक्टर समझ आ गया. अब ये देखो, अगर हम ए वेक्टर यूं लेते, ये बी वेक्टर लेते और ये लेते ऐसा कुछ, ए वेक्टर बी वेक्टर और ये रिजल्टेंट लेते, तो ये कैसे है, सेम ऑर्डर, यूं यूं यूं, हम यूं गए और यूं आ गए, ये सेम ऑर्डर हो गया. ये हो गया हमारे पास रिवर्स ऑर्डर, यूं गए फिर हम यूं नहीं गए, हम यूं गए. तो दो साइड को तो कैसा लेना है, दो साइड को लेना है हमें सेम ऑर्डर में, और थर्ड जो रिजल्टेंट है क्लोजिंग साइड है उसको रिवर्स ऑर्डर में लेना है. आ गया समझ, सेम ऑर्डर क्या है और रिवर्स ऑर्डर क्या है और अपोजिट ऑर्डर, और आर वेक्टर क्या है.
अब दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, उन दोनों में थीटा क्या होता है ये तो हमारी डेफिनेशन बोलती है। अब हमें क्या करना है, हमें क्या मिला है यहाँ से, आर वेक्टर मिला, माना कि ये ओ है, ये ए है और ये बी है। आर वेक्टर हमारे पास क्या है, सम ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है। आर वेक्टर क्या है यहाँ पे, ओ बी वेक्टर, यानी कि जो ओ बी वेक्टर है वो किसके इक्वल है, ओ ए प्लस ए बी वेक्टर के, ओ ए प्लस ओ बी वेक्टर के है। अब हमें आर वेक्टर यानी कि ओ बी वेक्टर है उसका क्या निकालना है, एक वेक्टर होता है हमारे पास, तो उसके पास हमारे पास उसकी डायरेक्शन होती है और उसका मैग्नीट्यूड होता है और उसकी डायरेक्शन होती है। एक वेक्टर जो हमारे पास है उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें हमारे पास आर वेक्टर है, उसकी हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी है, यानी कि जो आर वेक्टर आया है हमारे पास उसमें हम आर मॉडुलस ऑफ आर और आर कैप वो निकालेंगे ठीक। तो देखो कैसे निकालना है, माना कि यहां से एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस लाइन पे और इसका नाम हमने दे दिया n। जो ये एंगल है ए वेक्टर और बी वेक्टर के, जो हमारे पास दो वेक्टर हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, इन दोनों के बीच में जो वेक्टर बनेगा उसको, जो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम नाम देंगे थीटा। तो इसके और इसके बीच में ये एंगल बनता है थीटा, तो ये सही है? नहीं, ये गलत है। गलत क्यों है? अगर देखो हमारे पास अगर दो वेक्टर टेल टू टेल या फिर हेड, या तो टेल टू टेल या फिर ये हेड टू हेड ज्वाइन है, हेड टू हेड, या तो टेल टू टेल ज्वाइन होंगे या फिर हेड टू हेड ज्वाइन होंगे, तो हम थीटा कौन सा लेंगे? ये अंदर वाला, ठीक है। ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा दो वेक्टर के। यहाँ पे कैसे है? यहाँ हेड टू टेल है, ना ही हेड टू हेड है ना ही टेल टू टेल है। यहाँ पे कैसे है? हेड टू टेल। तो यहाँ पे थीटा हम अंदर वाला नहीं लेंगे। अंदर वाला क्या होगा? ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो अंदर वाला थीटा ये होगा ना, ये नहीं लेंगे हम। इसमें कौन सा थीटा लेंगे? ये वाला, बाहर वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना ही टेल टू टेल है ना ही हेड टू हेड है, इसलिए, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा थीटा। क्लियर? यहाँ पे आर वेक्टर क्या होता है, थीटा कौन सा लेना है, सेम ऑर्डर और रिवर्स ऑर्डर क्या होता है, हमने सब देख लिया। हमारे पास आया थीटा ये। अब थीटा ये आया तो अब ये देखो, इस ट्राइंगल में देखो ये क्या है, ये हमारे पास ए वेक्टर है, ये वाला हमारे पास बी वेक्टर है, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा? बी कॉस थीटा, और ये हमारे पास हो जाएगा बी साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक ये वेक्टर है बी, तो इसका हमारे पास ये थीटा है, तो इसका ये जो कंपोनेंट है कॉस थीटा वाला, थीटा के जो साथ में कॉस थीटा, और इसके ये वाला साइन थीटा हो जाता है, बी साइन थीटा। तो यही और ये दोनों क्या है? पैरेलल हैं, तो इसको ना दे के हम इसको नाम दे सकते हैं ना बी साइन थीटा। तो बी कॉस थीटा ये है, बी साइन थीटा ये है। अब इन ट्राइंगल ओ बी एन हमारे पास क्या है? पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो ओ बी जो वेक्टर है वो हमारे पास ओ एन वेक्टर प्लस बी एन वेक्टर के इक्वल होता है ना। तो ओ बी वेक्टर क्या है हमारे पास? आर वेक्टर, तो उसको हम आर वेक्टर नाम दे दें। ओ एन हमारे पास क्या है? 1 मिनट, इसको भी नाम देंगे। ओ बी वेक्टर जो है वो किसके हैं? ओ एन वेक्टर। ओ एन क्या है? ओ ए प्लस ए एन वेक्टर के इक्वल है। हेयर ओ एन वेक्टर जो है वो ओ ए प्लस ए एन के इक्वल है ना भाई, ओ ए प्लस ए एन। तो ओ एन वेक्टर को, ओ एन को क्या लिख सकते हैं हम? ओ ए प्लस ए एन लिख सकते हैं। ओ एन को ये लिख दिया हमने, और इसका स्क्वायर है, और बी एन को एज इट इज। अब ये हमारे पास आर वेक्टर है, ओ बी आर वेक्टर है, ओ बी आर वेक्टर है,
ओ ए हमारे पास क्या है, ओ ए, ये ए वेक्टर है हमारे पास इतना, और ये कितना है, ए एन बी कॉस थीटा, ये हमारे पास है बी कॉस थीटा प्लस बी एन क्या है हमारे पास, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा है। तो आर वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का स्क्वायर, ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो यहाँ पे हम a प्लस बी का स्क्वायर लगाएंगे जो कि होता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगाएंगे, 2ab प्लस बी साइन थीटा हमारे पास एज इट इज, बी साइन थीटा एज इट इज। यहां पे जो आर वेक्टर होगा अब किसके इक्वल हो जाएगा, यहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस, इसको लिख लें पहले, चलो ऐसे लिख लेते हैं, ए बी कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ये बी स्क्वायर साइन थीटा होगा ना, इसका स्क्वायर भी है, तो ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें और इसमें बी स्क्वायर कॉमन लग रहा है ना, तो बी स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं, इधर देखो बी स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर जो है, जो हमारे पास आर रिजल्टेंट वेक्टर है वो हो जाएगा ए स्क्वायर, अगर बी स्क्वायर को हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बच रहा है प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, ये इक्वल किसके होता है, 1 के, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये इससे मल्टीप्लाई 1 होके बी स्क्वायर ही बन जाएगा प्लस 2ab कॉस थीटा। तो जो आर है वो क्या आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस बी, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। और Hey there. magnitude of a and Subscribe to my channel. And also अब press हमें क्या this bell निकालना है, icon. हमें आर वेक्टर का आर कैप मिल गया, और हमें मतलब आर मॉड ऑफ आर मिल गया, मैग्नीट्यूड मिल गया, हमें निकालनी है डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, कोई एक वेक्टर और रिजल्टेंट के बीच में एंगल मानना है, एक वेक्टर और एक रिजल्टेंट, इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसको माना हमने अल्फा से अल्फा। तो हमारे पास जो एंगल हो जाएगा tan थीटा, यहां बता दूं एंगल क्या होएगा हमारे पास, ये है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अब हम बात कर रहे हैं डायरेक्शन, तो डायरेक्शन हमें क्या देता है, अल्फा, tan हमें क्या देता है, डायरेक्शन tan अल्फा। तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल OBN, इन ट्राइंगल OBN tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, b साइन थीटा अपॉन बेस क्या है, OA प्लस AN, यानी कि A वेक्टर प्लस B कॉस थीटा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो हमने मैग्नीट्यूड देखा, डायरेक्शन देखी, दो वेक्टर का सम करके एक रिजल्टेंट वेक्टर आता है R, उसकी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा,
सबसे पहले हम देखते हैं कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा ये कहता क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि ये होता क्या है। If two non-zero vectors are represented by the two adjacent sides of a parallelogram, then the resultant is given by the diagonal of the parallelogram passing through the point of intersection of the two vectors. तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि सबसे पहले ये देखो, ये पैरेललोग्राम होता है। ट्राइंगल लॉ हमने पिछली वीडियो में कर लिया था, इस वीडियो में हम पैरेललोग्राम करेंगे। ये पैरेललोग्राम होता है और ये इसका डायगोनल होते हैं। ये सेंटर है, दो डायगोनल हैं और चार साइड है पैरेललोग्राम की। तो हमारी डेफिनेशन क्या बोलती है? डेफिनेशन हमारी बोलती है कि अगर दो नॉन जीरो वेक्टर्स अगर दो एडजेसेंट साइड, ये क्या है? दो एडजेसेंट साइड। मान ली हमने ये दो एडजेसेंट साइड क्या है? दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, ठीक है, को रिप्रेजेंट करता है। इसको बोला कि वेक्टर ए है और इसको बोला कि वेक्टर बी है। अगर दो नॉन जीरो वेक्टर्स अगर पैरेललोग्राम की दो साइड को रिप्रेजेंट, दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करते हैं, ये दोनों कौन सी होंगी? ये दोनों पैरेलल साइड होंगी ना, ये और ये पैरेलल साइड होंगी। एडजेसेंट साइड ये वाली और ये वाली, या फिर ये वाली या फिर ये वाली, मतलब साथ वाली। तो अगर दो नॉन जीरो वेक्टर्स, ए वेक्टर बी वेक्टर, अगर दो नॉन जीरो वेक्टर्स अगर पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करते हैं तो उनका रिजल्टेंट यानी कि आर वेक्टर होता क्या है? ये क्या है? ये है एडिशन वेक्टर है ना, वेक्टर ऑफ टू एडिशन। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर को जब हम ऐड कराएंगे तो कुछ रिजल्ट आएगा ना, उसको हम रिजल्ट को क्या बोल रहे हैं? आर वेक्टर। तो जो रिजल्टेंट है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा में, जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा? डायगोनल आएगा। अब डायगोनल इसमें दो हैं, एक ये और एक ये, तो इन दोनों में से कौन सा लेना है? वो वाला जो इन दोनों वेक्टर्स के इंटरसेक्ट होते हुए जाए। तो ये क्या हो गया? इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट, ठीक है। मैं फिर बोलता हूं एक बार, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा ये बोलता है कि अगर दो साइड, अगर दो नॉन जीरो वेक्टर अगर पैरेललोग्राम की दो साइड को रिप्रेजेंट करते हैं, दो एडजेसेंट साइड को, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो डायगोनल होगा पैरेललोग्राम का। और डायगोनल ये वाला भी हो सकता था, बट डायगोनल कौन सा होगा? जो इन दोनों वेक्टर्स को इंटरसेक्ट करता हुआ जाए। तो ये हमारा डायगोनल होगा। इतना ही बोलता है हमारा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। अब हमारा काम क्या है इसमें? हमारा काम है कि हमें आर मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर निकालना है, यानी कि मैग्नीट्यूड निकालना है आर वेक्टर का और उसकी डायरेक्शन निकालनी है। तो ये हम कैसे निकालेंगे? देखो ये कैसे निकालेंगे? तो ए वेक्टर है ये, इसको ए वेक्टर बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं। ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है। तो ये बी वेक्टर है। पैरेलल शिफ्टिंग क्या होती है? ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर है, अगर हमने इसको उठा के यूं रख दिया तो वेक्टर पे कुछ फर्क तो नहीं पड़ता, बट हम इसको हम पैरेलल शिफ्टिंग बोलते हैं कि वेक्टर को हमने उठाया और इधर रख दिया। मैग्नीट्यूड इसका वही रहेगा, उतना ही मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी उसकी उस तरफ है, तो इस पे कोई प्रभाव, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस पैरेलल शिफ्ट कर दिया है हमने, हमारी नीड है इसलिए। तो पैरेलल शिफ्टिंग कर दी हमने इस वेक्टर की, और इसको नाम क्या है? नाम वही है, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन और उसकी मैग्नीट्यूड सेम है। इसकी पैरेलल शिफ्टिंग करी, यानी इस वेक्टर को उठा के हमने यूं रख दिया। तो ये कौन सा है हमारा? ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है। अब यहां से हमने एक क्या की? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एन, ये वाला आ रहा है समझ? और ए और बी वेक्टर जो है उनके बीच जो एंगल बन रहा है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच, उसको नाम दिया थीटा से। तो ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल होगा ना? होगा। क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये क्या है? बी वेक्टर। तो थीटा कंपोनेंट क्या होगा? बी कॉस थीटा, यानी कि इतने से लेके इतना हमारे क्या हो गया?
बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा हो गया। यहां से लेके यहां तक हमारा ए वेक्टर हो गया, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये कौन सा है, थीटा कंपोनेंट, ये साइन कंपोनेंट होता है, बी साइन थीटा। एक वेक्टर है ये बी, अगर इसका कॉस ये थीटा है तो ये इसका कॉस कंपोनेंट होगा बी कॉस थीटा, और ये इसका साइन कंपोनेंट होगा बी साइन थीटा। ऐसा ही यहाँ है ट्राइंगल में, ठीक है। अब हम देखते हैं, इसका नाम हमने दिया ए, इसका नाम नहीं दिया हमने, इसका नाम देते हैं ओ, इसका नाम दे देते हैं हम बी, इसका नाम दे दे ए, ये एन हो गया, और इसका नाम हम दे देते हैं, इसका नाम क्या दें, चलो पी दे देते हैं, पी। हमें बात करनी है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड की, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा वो हमें देखना है। तो देखो, इन ट्राइंगल OPN, OPN, इन ट्राइंगल OPN, कैसा ट्राइंगल है, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल OPN हमें क्या मिलेगा, जो हमारे पास OP स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, OP स्क्वायर है वो ON प्लस NP, ON स्क्वायर प्लस NP स्क्वायर के इक्वल होगा ना, होगा ना, बिल्कुल होगा। OP स्क्वायर इज इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस NP स्क्वायर, और ON क्या है, वो सम है OA प्लस AN का। तो हम क्या लिख सकते हैं, OP स्क्वायर इज इक्वल टू OA प्लस AN प्लस NP स्क्वायर, ये n है दिख रहा है ना, प्लस NP स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, OP हमारे पास क्या है, आर वेक्टर है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू OA हमारे पास क्या है, O से लेके A तक हमारे पास A वेक्टर है, A प्लस AN क्या है हमारे पास, B कॉस थीटा है, B कॉस थीटा, और इस पूरे का स्क्वायर है, और ये हमारे पास क्या है, B साइन थीटा है भाई। अब इसको करते हैं सॉल्व, तो सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस B का स्क्वायर लगाएंगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, 2AB प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको ओपन करते हैं, इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इधर करें, इसको ओपन करते हैं हम, तो हमारे पास आएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये जो बी स्क्वायर है इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो इधर से क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर से क्या मिलेगा हमें, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या है हमारे पास 2AB कॉस थीटा, ये है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास कितना होता है, इक्वल टू 1 होता है। तो हम आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। तो हमारे पास r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ये हमारे पास क्या आ गया, रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, a प्लस बी वैक्टर का क्या है, ये सम है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी ये आ गया, मैग्नीट्यूड मिल गया। अब हम इसमें कुछ स्पेशल केस देखते हैं, स्पेशल केसेस देखते हैं इसमें। स्पेशल केसेस क्या क्या है इसमें, स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस में ये है कि r हमारा अंडर रूट a प्लस बी हो जाएगा, सॉरी a प्लस बी हो जाएगा, कब होगा, जब when थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री।
क्यों भाई ऐसा क्यों होगा? तो देखो ये फॉर्मूला आया हमारे पास r का, थीटा हमने कितना बोला 0 डिग्री, यानी अगर हम थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे कॉस थीटा, यानी थीटा को अगर 0 रखेंगे यानी कि कॉस थीटा हो जाए, इधर देखो कॉस थीटा है यहाँ पे, हमने बोला थीटा 0 डिग्री है यानी कि कॉस 0 डिग्री हो गया। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी 1 होती है, तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, अगर 0 रखते हैं तो 1 आती है, तो ये क्या हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, किसका फॉर्मूला हुआ a प्लस बी स्क्वायर का, हुआ ना। तो ये रूट और ये स्क्वायर अगर कैंसिल आउट होंगे तो r कितना आएगा, a प्लस बी आएगा ना। तो स्पेशल केस ये है, r हमारा a प्लस बी होगा जब थीटा कितना होगा 0 डिग्री, r हमारा a माइनस बी होगा जब थीटा कितना होगा, when theta is equal to 180 degree, because when cos theta is equal to 180 degree the value of cos theta is equal to -1, तो -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा ना, और ये किसका फॉर्मूला होगा a माइनस बी का, तो यहाँ पे हमें क्या दिखेगा a माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। एंड r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कब होगा, when थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। हाउ, ये क्यों होगा, तो ये यूं होगा, देखो ये क्यों होगा, जब थीटा कितना डाला हमने 90 डिग्री, तो 90 पे कितनी वैल्यू होती है 0, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या, बस ये बचेगा ना, तो r इज इक्वल टू ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास 3 स्पेशल केसेस थे, r जब 0 डिग्री हो, r जब 180 डिग्री हो, और r जब 90 डिग्री हो। अब बात करते हैं, मैग्नीट्यूड हमने देख लिया, अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन। तो डायरेक्शन हमें कौन सा देता है, एक वेक्टर, यानी कि एक ये वाला वेक्टर ले लिया हमने ए वेक्टर, और दूसरा रिजल्टेंट वेक्टर, उन दोनों के बीच जो एंगल बनता है उसको नाम दिया बीटा, और जो ये बीटा नाम दिया, हम बीटा अल्फा कुछ भी नाम दे सकते हैं, गामा, तो जो हमने ये नाम दिया, इसका जो tan आता है वो हमें डायरेक्शन देता है। क्या मतलब, देखो tan किसका, tan हमने नाम किसका दिया, बीटा का, तो tan बीटा हमें क्या देगा, डायरेक्शन। और tan बीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, इसका परपेंडिकुलर है b sin थीटा, b sin थीटा, इसका परपेंडिकुलर क्या है pn, अपॉन बेस क्या है on, बेस है हमारे पास on, तो pn क्या है, pn अपॉन on कितना है हमारे पास, OA प्लस AN का सम है ना, है ना, है। तो देखो tan बीटा, तो tan बीटा कितना हो जाएगा, pn की वैल्यू कितनी है, b sin थीटा, b sin थीटा है, b sin थीटा अपॉन OA की वैल्यू कितनी है, a वेक्टर है, और AN की कितनी है, b cos थीटा है, यानी कि a प्लस में b cos थीटा, ये हमारे पास क्या आ गई डायरेक्शन। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो ये हमारे पास क्या आ गई, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। तो हमने मैग्नीट्यूड देख लिया, डायरेक्शन देख ली, और इसी से हमें आर वेक्टर मिला, मैग्नीट्यूड, और ये हमारे पास डायरेक्शन मिली, और 3 स्पेशल केसेस थे जो कि हमने यहाँ देखे। तो ये हमारा कंप्लीट होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। Scalar product of two vectors. Let's start with its definition. The scalar product or dot product of two vectors is defined as the product of the magnitude of two vectors with cosine of angle between them. Thus, if there are two vectors A vector and B vector having the angle theta between them, then their scalar product written as A vector dot B vector is defined as vector product of two vectors. The vector product or cross product of two vectors is defined as the product of the magnitude of two vectors with sine of angle between them, and the direction is perpendicular to the plane containing the two vectors
in accordance with the right hand screw rule. Thus, if A vector and B vector are two vectors, then their vector product written as A vector cross B vector. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.